Good morning student, this is Priyanka Chaudhary, your biology teacher, SVS Smart Classes. So what we have studied so far, this chapter life processes, we have completed two type of processes. First is your nutrition and second is respiration. Now today there is a transportation. So what do you mean by transportation? It simply means transfers of substance. Like let us take an example, like we have to move from one place to another, we need some medium like any vehicle or any transportation system. So as in our body also we need some medium, for transportation, okay? So in our body blood act as a medium which help in transportation of any substance from one cell to another. So let's see, blood is a special connective tissue in humans. It transports necessary substances to cells and transport metabolic waste product away from the cells. Now student, come to the main components of blood. First is plasma. It is a yellowish colored fluid which transports nutrients, carbon dioxide and some metabolic waste from one cell to another cell. RBC, it is in expanded form, it is red blood corpuscles. It contains a pigment called hemoglobin which carries oxygen from one cell to another cell. Now come to the WBC, it is white blood cells. These cells provides a defense mechanism to the body. It fights against the bacteria, viruses, fungi. Now come to the platelets. एज वी सीन, अगर हमें कहीं कट लगता है बॉडी में तो हमारा जो कंटिन्यू ब्लड लॉस नहीं होता है, क्योंकि वी हैव प्लेटलेट्स इन आवर बॉडी which helps in clotting of blood. Student, as we see in this diagram, there is a centrifugation of blood in which we can clearly see the components of blood. देखिए after centrifugation जो आपका प्लाज्मा है वो कहाँ पे आ गया, आपका जो प्लाज्मा है वो कहाँ पे आएगा, इन टॉप ऑफ द टेस्ट ट्यूब. ये क्या है, प्लाज्मा. और जो मिड में है वो क्या है, WBC एंड प्लेटलेट्स. और जो आपका बॉटम में जो सेटल डाउन हो गया है वो क्या है, आपकी RBCs ऑफ ब्लड. स्टूडेंट्स, फॉर ट्रांसपोर्टेशन वी नीड अ पंपिंग ऑर्गन टू पुश द ब्लड अराउंड द टिश्यू. सो इन आवर बॉडी हार्ट इज एक्ट एज अ पंपिंग ऑर्गन. ठीक है, हार्ट इज अ मस्कुलर ऑर्गन which contain two sides, left and right, separated by a muscular wall, and it has 4 chambers. Come to the look at this diagram. This is your heart, a muscular organ, contains 4 chambers. The upper 2 chambers called atrium and the lower 2 chambers called ventricles. Is it clear to you? हम ये जो हार्ट है, हार्ट के 4 chambers क्यों होते हैं? In mammals, a heart contains 4 chambers because there is a transportation of oxygen as well as carbon dioxide in our body. जो आपका left portion है, यहाँ से सिर्फ आपका oxygenated blood pump होगा. Oxygenated means oxygen rich blood, and from this side deoxygenated blood. So a heart contains 4 chambers. From in the left chambers oxygenated blood has pumped, and in right chambers carbon dioxide rich blood has pumped. And in our body there are 3 type of blood vessels. First is artery, second is vein, and the third is capillaries, which transports the blood from one organ to another organ. About these blood vessels we will study later on. Now student, come to the working of heart. Our heart contains the 4 chambers, left and right. Left वाला जो portion है, left portion carries the oxygenated blood and the right portion pumps the deoxygenated blood. जो ये आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो कहाँ पे, जो ऑक्सीजन रिच ब्लड है वो कहाँ पे, आपका लंग्स में. ठीक है, लंग्स में कहाँ पे, एल्वुलाई में. वहीं पे तो आपका एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है इन ब्लड एंड टिश्यू. कहाँ पे होता है, इन एल्वुलाई ऑफ लंग्स. ठीक है, तो आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो कहाँ पे है, इन एल्वुलाई. ठीक है, तो जो आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो कौन लेकर आएगा, इन द लेफ्ट आर्ट्रियम. कौन लेकर आएगा,
पल्मोनरी वीन, ये पल्मोनरी वीन्स, आर्टरीज, ये सब क्या है, कैपिलरीज, ये आपके ब्लड वेसल्स है विच कैरीज द ब्लड फ्रॉम वन ऑर्गन टू एन अदर ऑर्गन, ठीक है। जो आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड है फ्रॉम लंग्स कौन कैरी करेगा, योर पल्मोनरी वीन कैरीज द ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम एल्वोलाई टू द लेफ्ट आर्ट्रियम ऑफ हार्ट, ठीक है। फिर जो आपका ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो कहाँ पे आएगा, इन लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है। जब लेफ्ट आर्टरी में आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है फिल होगा उस टाइम पे जो आपका ये वाला जो पोर्शन है ये क्या होगा, इन रिलैक्स पोजीशन, ठीक है। फिर जैसे जैसे ब्लड आपका लेफ्ट वेंट्रिकल में पास होगा तो उस टाइम पे क्या होगा, जो आपका आर्टरी वाला पोर्शन है ये क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्ट करेगा, ड्यू टू विच ब्लड इजीली पास इन द लेफ्ट वेंट्रिकल ऑफ हार्ट, ठीक है। जैसे आपका हार्ट है वो क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है, रिलैक्स करता है, कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स पोजीशन में आता है। तो ये क्या है, कॉन्ट्रैक्ट कब होगा, जब आपका जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो कहाँ पे फिल होगा, इन लेफ्ट वेंट्रिकल, एट दैट टाइम ये जो लेफ्ट आर्ट्रियम है कॉन्ट्रैक्ट करेगा, ठीक है। नाउ कम टू द राइट पोर्शन विच पम्प्स द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है। जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, जैसे आपके सेल्स हैं, सेल्स में रेस्पिरेशन होगा, ठीक है, कुछ मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोड्यूस होगा, तो ये मेटाबॉलिक वेस्ट लाइक जो भी आपका कार्बन डाइऑक्साइड है, जो ब्लड जो कैरी करेगा कार्बन डाइऑक्साइड, इट इज़ कॉल्ड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है। तो आपका जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो किसके थ्रू, राइट आर्टरी में आएगा, वाया वेना कैवा, ये आपकी क्या है, लार्जर वीन है, ठीक है। वेना कैवा के थ्रू आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ पे आएगा, इन राइट आर्ट्रियम ऑफ हार्ट। उसके बाद क्या है, ये ब्लड आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड कहाँ पे पास होगा, इन राइट वेंट्रिकल, ठीक है, राइट वेंट्रिकल, ठीक है। अब ये डीऑक्सीजनेटेड जो ब्लड है इसको किस में कन्वर्ट होना है, इन ऑक्सीजनेटेड ब्लड में। तो ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड में कन्वर्ट होने के लिए कहाँ पे जाएगा, इन लंग्स। लंग्स में क्या हो रहा है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस। नाउ स्टूडेंट कम टू द वर्किंग ऑफ हार्ट, ठीक है। आवर हार्ट कंसिस्ट्स ऑफ 4 चैम्बर, लेफ्ट एंड राइट। The upper 2 chambers called atrium and the lower 2 chambers called ventricles, ठीक है। Now come to the left portion of heart, ठीक है। जो आपका जो लेफ्ट पोर्शन है हार्ट का वो कौन सा ब्लड पंप करेगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या, ऑक्सीजनेटेड ब्लड इज अ ऑक्सीजन रिच ब्लड। ये कहाँ से आएगा, फ्रॉम, कहाँ से आएगा, फ्रॉम लंग्स। लंग्स में कहाँ से, एल्वोलाई। एल्वोलाई में क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है ब्लड एंड टिश्यू में, ठीक है। तो आपका जो ऑक्सीजन रिच ब्लड है वो कहाँ से आएगा, फ्रॉम लंग्स। कैसे आएगा, बाय अ पल्मोनरी वीन, ठीक है। पल्मोनरी वीन कैरीज द ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम एल्वोलाई टू लेफ्ट आर्ट्रियम ऑफ हार्ट, ठीक है। उसके बाद जो आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो कहाँ आएगा, इन लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है। लेफ्ट वेंट्रिकल से ऑक्सीजनेटेड जो ब्लड है, ऑक्सीजन रिच ब्लड है, ये अदर ऑर्गन्स में, ठीक है, लाइक अदर सेल्स में, ठीक है। कैसे जाएगा, बाय अरोटा। अरोटा क्या है, ये लार्जर आर्टरी है, ठीक है। उसके बाद नाउ कम टू द राइट पोर्शन ऑफ हार्ट। ये जो आप राइट पोर्शन कौन सा ब्लड पंप करेगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ये आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ से प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या, कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड। जैसे आपके सेल्स हैं ये रेस्पिरेशन प्रोसेस करेंगी या कोई भी फंक्शन करेंगी तो आपका मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोड्यूस होगा, लाइक कार्बन डाइऑक्साइड एटसेट्रा, ठीक है। तो ये क्या है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड, ठीक है। ये कहाँ से आएंगी, फ्रॉम अदर ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी। कौन लेकर आएगा इसको, बाया वेना कैवा। वेना कैवा क्या है, आपकी लार्जर वीन है, ठीक है। तो ये आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ पे फिल हुआ, इन राइट आर्ट्रियम। उसके बाद कहाँ पे आएगा, इन राइट वेंट्रिकल, ठीक है। राइट वेंट्रिकल से ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ पे जाएगा, इन लंग्स। लंग्स में क्यों जाएगा, फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेज एंड ब्लड, ठीक है। जैसे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड है, ये कहाँ जाएगा, लंग्स में जाएगा। लंग्स में क्या होगा, एक्सचेंज ऑफ गैसेस होगा। वहाँ पे क्या होगा, जो आपकी CO2 है वो एल्वोलाई और लंग्स से होते हुए कहाँ, बॉडी से पास आउट हो जाएगी। और आपका जो ऑक्सीजन है वो कहाँ पे आएगा,
इन एल्वोलाई में ऑक्सीजन है, ठीक है, तो वो कहाँ पे आएगा, इन ब्लड में, ठीक है। उसके बाद फिर से वही प्रोसेस शुरू होगा, जो आपका एल्वोलाई में ऑक्सीजन रिच ब्लड है, जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, जो डीऑक्सीजनेटेड कन्वर्ट हो गई है इन ऑक्सीजनेटेड ब्लड में, वो कहाँ पे, लंग से कहाँ आएगा, इन लेफ्ट आर्टरियम। कौन उसको लेके आएगा, पल्मोनरी वीन, ठीक है। उसके बाद आपका ये ब्लड कहाँ पे फिल होगा, इन लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है। जैसे आपका जो हार्ट है कॉन्ट्रैक्ट करता है, रिलैक्स करता है, कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स क्यों करता है, देखिए जब आपका लेफ्ट वाले पोर्शन में जब ब्लड फिल होगा उस टाइम जो आपका अपर पोर्शन है वो क्या होगा, इन रिलैक्स पोजीशन। लेकिन जैसे ही जो लेफ्ट ये जो आपके डाउन वाले जो पोर्शन है, जो लोअर पोर्शन ऑफ हार्ट है, वहाँ पे लाइक इन वेंट्रिकल्स, ठीक है, वेंट्रिकल्स में जैसे ही ब्लड फिल होगा उस टाइम क्या होगा, जो आपका अपर पोर्शन है वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा, जिस ड्यू टू विच जो आपका ब्लड है वो इजीली आपके वेंट्रिकल्स में क्या होगा, फिल हो जाएगा, ठीक है। सो दिस इज़ द वर्किंग ऑफ हार्ट। आपका जो ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम है, इसका जो सर्कुलेशन है वो क्या है, डबल सर्कुलेशन है। क्यों है, देखिए आपका जो ब्लड है वो आपके हार्ट में अलग अलग साइड में क्या हो रहा है, पंप हो रहा है। देखिए जो आपका ह्यूमन में जो सर्कुलेटरी सिस्टम है वो डबल सर्कुलेटरी सिस्टम है। क्यों, क्योंकि जो आपका ब्लड है वो आपके वो आपके 2 बार सर्किट में क्या हो रहा है, फिल हो रहा है। जो आपका ह्यूमन में जो सर्कुलेटरी सिस्टम है वो क्या है, डबल सर्कुलेटरी सिस्टम। क्यों है, क्योंकि ब्लड पासिस थ्रू द हार्ट ट्वाइस पर सर्किट। देखिए एक बार जो आपका ब्लड जो है वो पास हो रहा है लेफ्ट वाले पोर्शन से, एंड एक बार आपका जो ब्लड है वो पास हो रहा है राइट वाले पोर्शन से, ठीक है। लेफ्ट वाले पोर्शन से आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड पास हो रहा है और राइट वाले पोर्शन से आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पास हो रहा है, ठीक है। जो आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो कहाँ से आएगा, लंग से आएगा, ऑक्सीजन रिच ब्लड लंग से आएगा, फिर आपके राइट वेंट्रिकल में फिल होगा, फिर उसको जो अरोटा है वो कैरी करेगी थ्रू टू द अदर ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी। और जो आपका राइट वाला पोर्शन है इसमें जो आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो कहाँ से आ रहा है, फ्रॉम अदर ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी। कौन लेकर आ रहा है, आपका वेना केवा लेकर आ रहा है, ठीक है। उसके बाद आपका राइट आर्टरी में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आगे कौन लेके आया, वेना केवा। उसके बाद राइट वेंट्रिकल्स में क्या है, आपका ब्लड फिल हो रहा है। फिर वहाँ से आपका जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड में कन्वर्ट होने के लिए कहाँ पे जाएगा, इन लंग्स। कौन लेके जाएगा इसको, पल्मोनरी आर्टरी। सो दिस इज द वर्किंग ऑफ हार्ट। और एक और पॉइंट, जो आपका आर्ट्रियम है और वेंट्रिकल्स है, जो वेंट्रिकल्स होती है ये क्या होता है, थिक वॉल्ड होती है। इनकी जो वॉल होती है वो थिक होती है, इट इज़ ऑफ थिक वॉल, ठीक है। और जो आर्ट्रियम होता है इनकी जो वॉल होती है वो थिन होती है। ये जो आपकी वेंट्रिकल्स की वॉल है वो थिक क्यों होती है, क्योंकि इट हैज़ टू पंप द ब्लड टू अदर ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी, ठीक है। नाउ कम टू द वर्किंग ऑफ हार्ट। स्टूडेंट, एज वी स्टडीड, our heart contains the 4 chamber, ठीक है। the upper 2 chamber called the atrium and the lower 2 chamber called the ventricles। जो आपका लेफ्ट वाला पोर्शन है it pumps the oxygenated blood, and जो आपको राइट वाला पोर्शन है हार्ट का it carries the deoxygenated blood। देखिए आपके हार्ट के 4 chambers क्यों हैं, क्योंकि it is because इट प्रिवेंट्स द मिक्सिंग ऑफ ब्लड। देखिए आपकी बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड भी है, ऑक्सीजन रिच ब्लड भी है। तो आपके हार्ट में 2 साइड्स हैं, एक साइड से आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो पंप होगा, एंड फ्रॉम द अदर साइड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पंप्स, ठीक है। तो क्या होगा, इसकी वजह से आपका जो मिक्सिंग है वो क्या होगी, प्रिवेंट हो जाएगी। Student, now come to the blood vessel. First is artery. It is artery. What is the function of artery? It carries the blood from heart to the other organs of the body. It has thick muscular wall. Muscular wall thick है तो understood है। जो इसका lumen होगा वो क्या होगा, narrow. It takes blood away from the heart to the other organs of the body. It कैरीज ब्लड क्विकली अंडर हाई प्रेशर, ठीक है। जो आपकी आर्टरीज है इसमें लार्जेस्ट आर्टरी है वो कौन सी है, अरोटा, ठीक है। नाउ कम टू द वेन्स। इट कैरीज ब्लड
from, now come to the student, now come to the veins. It carries blood from other organs of the body to the heart. ठीक है, it has thin muscular wall, muscular wall thin है तो इसका lumen क्या होगा, वो large होगा. It have valves which prevents the backflow of blood. एंड जो आपकी लार्जेस्ट वेन है वो कौन सी है, वेना केवा. ठीक है, वेना केवा का क्या फंक्शन है, इट कैरीज द ब्लड फ्रॉम अदर ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी टू द राइट आर्टरियम ऑफ हार्ट. ठीक है, नाउ कम टू द कैपिलरीज. ठीक है, ये क्या है कैपिलरीज, इट इज़ अ टिनी ब्लड वेसल्स विच कनेक्ट्स आर्टरी टू द वेन्स. देखिए जो आपकी आर्टरीज हैं इनका क्या काम है, इट कैरीज ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट टू अदर ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी. ठीक है, और आपकी वेन्स का क्या काम है, इट कैरीज द ब्लड फ्रॉम ऑर्गन, फ्रॉम सेल्स टू हार्ट. ठीक है, तो आपका जो बीच में जो लिंक है इन आर्टरीज एंड वेन्स वो कौन है, कैपिलरीज है. इट कनेक्ट्स द आर्टरीज टू द वेन्स. जो आपके टिश्यू लेवल पे जो एक्सचेंज होगा, ठीक है, O2 का, न्यूट्रिएंट्स का जो भी है वो किसकी हेल्प से होगा, विद द हेल्प ऑफ कैपिलरीज. इट कैरीज ऑक्सीजन न्यूट्रिएंट्स टू इंडिविजुअल सेल्स थ्रू आउट द बॉडी. ठीक है, सो स्टूडेंट here we completed the transportation. ठीक है, so this is the end of this lecture. Thank you.